Okay, now we are going to start with the advanced binary trees. So far, what we have done is what is a binary tree, the terminologies related to the binary trees, and some of the variations of a simple binary tree. And now we are going to discuss some advanced versions of a binary tree. तो हमारे पास जो फर्स्ट एडवांस्ड बाइनरी ट्री है, हम उसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री. As the name suggests, the objective of creating such a tree is to improve the search operation in the binary tree. जब हम कहते हैं कि ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं जो कि रूट नोड से स्टार्ट होते हैं, तो जब हम किसी एलिमेंट को सर्च करना शुरू करते हैं, तो हाउ डू वी नो कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए? शुड आई गो टू द लेफ्ट साइड और शुड आई गो टू द राइट साइड? So have a look at this binary tree. It is a binary tree, but it is a special tree because of some of the features. If you look at the value of the रूट नोड, अगर आप रूट नोड की वैल्यू को ध्यान से देखेंगे विच इज 37, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ऑल द नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री, जो इसके लेफ्ट साइड पर आ रही हैं, इज लेस देन द 37, और जितनी भी वैल्यूज राइट साइड पर आ रही हैं ऑफ द रूट नोड आर ग्रेटर देन 37. Now this is applicable to all the nodes. अगर आप राइट सब ट्री को ध्यान से देखेंगे, तो राइट सब ट्री की रूट नोड की वैल्यू कितनी है? 42. तो इट इज लेस देन 120 जो उसके राइट सब ट्री में आ रहा है, एंड इट इज ग्रेटर देन 41 एंड 40 जो इसके लेफ्ट सब ट्री में आ रहा है. तो व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री? A binary search tree is one in which the value of each node is greater than the value of all nodes in the left subtree and less than the value of all nodes in the right subtree. So what is the definition of a binary search tree? The value of each node, मतलब हर नोड, सिर्फ रूट नोड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हर नोड की बात कर रहे हैं. द वैल्यू ऑफ ईच नोड n इज ग्रेटर देन ऑल नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री, यानी उसके लेफ्ट चाइल्ड के जो नीचे नोड्स आ रही हैं या लेफ्ट चाइल्ड जो है उससे ग्रेटर होती हैं, एंड इज लेस देन ऑल द नोड्स इन द राइट सब ट्री. ओके, इंपॉर्टेंट थिंग, binary search tree does not have duplicate entries. So do not consider the case in which two nodes have the same value. So we have a binary search tree, or binary search tree can be created when there are no duplicate entries in the list. So how to search 40? अगर हमें 40 सर्च करना है, अगर हमें ये पता करना है कि कौन सी नोड की वैल्यू 40 है, तो हाउ टू डू इट एंड हाउ डज द बाइनरी सर्च ट्री हेल्प? First of all, we compare the value of 40 with the value of the root node, which is 37. We find out that 40 is greater than 37. If it is greater than 37, it means it cannot be in the left subtree. It can only be in the right subtree. So let's move to the right subtree. Now we compare the value 40 with 42. We find out that 40 जो है वो छोटा है 42 से. That means it cannot be in the right, it has to be on the left.
तो आप 41 से कंपेयर कीजिए, 40 इज स्मॉलर देन 41, तो इट विल बी ऑन द left side, and we are able to find 40 here. Just see how fast we were able to find the exact location of 40, और हमारा जो पाथ फॉलो किया गया है वो बिल्कुल करेक्ट था। वो क्यों? क्योंकि we followed the concept of binary search tree. Binary search tree is a tree in which we can find the location of any node in the tree in the maximum of log n time. Log time. So I hope that the definition of the binary search tree is clear to everyone. Binary search tree is a special tree in which the value of each node is greater than all the nodes in the left and less than all the nodes in the right subtree. And it does not have any duplicate entry. The second is called an AVL tree. An AVL tree is an extension of the binary search tree. यानी जो बाइनरी सर्च ट्री है, अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो शायद उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो दैट डिसएडवांटेज इज क्लियर फ्रॉम दिस ट्री दैट यू सी ऑन योर screen. The root node is 10. Now 20 is greater than 10, so it comes to the right side. अब 30 20 से भी बड़ा है तो वो उसके राइट में आ गया, अब 40 उससे बड़ा है तो वो आ गया, एंड देन 50 उससे बड़ा है तो वो इधर आ गया। एंड नाउ देयर इज नो एडवांटेज इन क्रिएटिंग सच अ बाइनरी ट्री। तो ऐसे ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यूड बाइनरी ट्री। स्क्यूड मीन्स जो एक तरफ बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ नहीं बढ़ रहा है। ये राइट साइड को बढ़ रहा है तो दिस इज कॉल्ड द राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री, और अगर ये लेफ्ट की तरफ बढ़ता तो हम इसको बोलते लेफ्ट बाइनरी सर्च ट्री। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसके लेफ्ट साइड में कोई नोड ही नहीं है, सारी की सारी नोड्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं, तो इसमें सर्च का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो व्हाट वी डू इज we convert the simple binary search tree into an AVL tree. AVL tree का मतलब क्या है? एवरेज लेंथ। तो हम क्या करते हैं? हम इंश्योर करते हैं कि हम बाइनरी सर्च ट्री को ऐसे बनाते हैं ताकि जो लेंथ और हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री है और हाइट ऑफ द राइट सब ट्री है, उसके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस 1 का आना चाहिए। अब हम इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेंगे। अगर आप इसी ट्री की बात कर रहे हैं तो इसका ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसकी हाइट कितनी है? यानी ट्री जो रूट नोड के राइट में आता है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 4, 1 2 3 एंड 4। अब 10 के लेफ्ट में जो ट्री आ रहा है उसकी हाइट कितनी है? द हाइट इज 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो what is the difference between the two? The difference between the two is of 4, and अगर ऐसा होता है तो हमें बाइनरी सर्च ट्री का फायदा नहीं मिलता है। हम क्या करेंगे? हम हाइट ऑफ द राइट यानी राइट सब ट्री की हाइट में और लेफ्ट सब ट्री की हाइट में जो गैप है वो मैक्सिमम ऑफ 1 रखेंगे। तो ये कैसे अचीव करते हैं वो हम अभी देखते हैं। हम इसी ट्री को कन्वर्ट कर देंगे इनटू एन एवीएल ट्री लाइक दिस। पहले रूट नोड क्या थी? द रूट नोड वाज 30 एंड नाउ द रूट नोड इज सॉरी फर्स्ट पहले जो रूट नोड थी वो 10 थी, नाउ द रूट नोड इज 30। जैसे ही हमने रूट नोड चेंज कर दी 10 टू 30 तो क्या हुआ? 20 एंड 10 जो था वो इसके लेफ्ट में चला गया और 40 एंड 50 इसके राइट में चला गया।
Now let us check what is the difference in the height of left and right subtree. Right subtree की height कितनी है 2 और left subtree की height कितनी है 2. So what is the difference? That is 0. This is called an AVL tree because it is a binary search tree plus इसके अंदर जो डिफरेंस लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट में जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन 2, यानी मैक्सिमम 2 का मैक्सिमम 1 का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. नेक्स्ट ट्री इज कॉल्ड अ हीप, HEAP, हीप. नाउ इन द बाइनरी सर्च ट्री हम लोग जो वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन देखते हैं वो लेफ्ट और राइट में देखते हैं. हीप में जब हम लोग ये चीज देखते हैं कि वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन, तो हम लोग ऊपर और नीचे की तरफ देखते हैं. हम लोग दो तरह की हीप बना सकते हैं जिसमें ऊपर वाली नोड की वैल्यू उसके नीचे आने वाली सभी नोड्स से ज्यादा होती है या उसकी वैल्यू नीचे आने वाली सभी नोड से कम होती है. तो दैट मीन्स बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट एंड राइट देखते हैं, तो हीप में अप एंड बॉटम देखते हैं. हीप इज अनदर टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. It forms the basis for the very important search algorithm called the heap sort. तो इसमें दो तरह की हीप बन सकती है. One is called the max heap and the other one is called the min heap. तो max heap में क्या होता है, इसमें the value of each node n in a tree is greater than the value of all child nodes. तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. Consider this tree 20, 18, 19, 14, 13, and 15. This is max heap. Why it is max heap? Because इसमें आप root node की वैल्यू देखिए 20. It is greater than the value of all the nodes जो उसके नीचे आ रही हैं. उसी तरह से आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 18. इट इज ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज जो इसके नीचे आ रही हैं. दिस इज मैक्स हीप. तो मिन हीप क्या होगी, इसके ऑपोजिट होगी, जिसमें मान लीजिए रूट नोड की वैल्यू जो है वो 20 है, उसके नीचे एक नोड आ रही है जिसकी वैल्यू 25 है, एंड देन यहाँ पर आ रहा है लेट्स से 30 एंड देन 32. दिस इज कॉल्ड मिन हीप बिकॉज इसमें हर नोड की जो वैल्यू है इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द नोड जो उसके नीचे आती है. तो दिस इज कॉल्ड मिन हीप एंड मैक्स हीप. एंड हम लोग ये यूज कहाँ पर करते हैं, सॉर्टिंग के लिए, एंड दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड द हीप सॉर्ट. So that is the end of the lecture for today. I hope that the concepts that we have done